Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter in the earliest cities, which is your third chapter in history. And in the previous class we have discussed about these earliest cities which developed in the Indian subcontinent around 4700 years ago. These cities were developed in the river valley of Indus and its five tributaries: Satluj, Ravi, Jhelum, Chenab, and Beas. And these are also known as Harappan civilization because the first place where the archaeologists found about the traces of these earlier cities was Harappa, and on the name of that city, this Harappa name was given to this civilization. And one more thing which is very important, that the important cities of this Indus Valley civilization were Harappa and Mohenjo-daro, which are presently in Pakistan. And other than these Harappa and Mohenjo-daro, there were other cities also like Lothal, Dholavira, Surkotda, then Chanhu-daro, then Kalibangan. These were the important cities of Harappan civilization or Indus Valley civilization. And we have discussed about the houses, the street and drains of the city, and we have seen that these all were planned. The development of city was not something which happened, which occurred without any planning, but everything was planned and everything was built at the same time. That is why the cities were so arranged. Everything was in a proper place, in a proper manner. Everything was done. And after discussing these streets, drains and house, we have started our discussion about life in the cities. Who were the people who used to live in the cities? So it was life in the cities. And we have seen that there were it is not nothing is can be said about these civilization as 100% correct, because we don't have any written evidence. Whatever scripts they used, that script is not deciphered by the historians. The historians are not able to read the scripts of the Harappan people. That is why everything is whatever is the conclusion or whatever is the we are studying about Harappan civilization, that is on the basis of the findings of the archaeologist. The archaeologist who excavated under the ground, they tagged so many objects, so many buildings, and accordingly they studied all these objects and buildings and they came to conclusions. So we see that there used to be people who took decisions, who were responsible for making plans for the whole city. These people were most probably rulers, because it is the rulers who take decisions, it is the rulers who make plans. So it was done by the rulers, and it is also very much possible that these rulers sent people to distant lands so that they can get different materials like metal, precious stones and other things. And other than rulers, there were also scribes, and these were the people who used to write. And where did they write? कहाँ वो लिखते थे? They wrote on the seals. And what were the seals? As I told you in the previous class, seals were used for the purpose of trade. When trading was done, it is very important that the objects which are being traded, they must be sealed so that they should not be tampered.
तो इसके लिए सीलिंग की जाती थी, और जो सीलिंग का जो उनका तरीका था वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। तो इस तरह से ये सीलिंग पे ये स्क्रिप्ट्स जो होते थे वो लिखते थे। उन स्क्रिप्ट्स को अभी पढ़ा नहीं जा सका है। And it is also probable that these scripts they may have written on other materials as well, but these materials are not survived. We are not able to get those materials. तो इतना ही हमें इसके बारे में जानकारी मिल पाई। एंड वेन एवर आई एम टेलिंग यू वी, वॉट डज इट मीन? जब हम हिस्ट्री में भी यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ अबाउट द हिस्टोरियंस एंड द आर्कियोलॉजिस्ट। Historians and ओके सो इस बात को आपको समझना है ना। और जब सिविक्स में हम वी कहते हैं तो सिविक्स में वी का मतलब होता है सोसाइटी अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि हाँ व्हाट आर द अदर पीपल। एक तो रूलर्स हो गए जिसको हमने डिस्कस कर लिया था, scripts हो गए, we have discussed about scripts also, and now we will be discussing about the craft persons. Other than these scripts and rulers, there were men and women who used to be the craft persons. These craft persons they made things with their hand, है ना। क्राफ्ट क्या होता है? क्राफ्ट का आइटम, आप लोग भी आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस होते हैं, है ना। क्राफ्ट का मतलब यही होता है वो चीज़ें जो हम अपने हाथों से बनाते हैं। तो ऐसे क्राफ्ट पर्सन्स होते थे और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे इन द सोसाइटी, है ना। एंड मोस्टली वो दे यूज टू वर्क इन देयर हाउस और इन द वर्कशॉप। इस तरह से वो तरह तरह की चीज़ें बनाते थे, और जो बहुत दूर दूर से लोग रॉ मटेरियल्स क्या होता है? किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जिन सामानों की ज़रूरत पड़ती है, एक फिनिश्ड गुड जो बनता है उसको बनाने के लिए जिन सामानों के हेल्प से हम बनाते हैं। जैसे हमें अगर बास्केट बनाना है स्ट्रॉ का, तो उसके लिए हमें स्ट्रॉ चाहिए होगा, है ना। देन वी कैन मेक द बास्केट। तो ये जो स्ट्रॉ है वो क्या है? वो हमारे लिए रॉ मटेरियल है। तो इस तरह से जो क्राफ्ट पर्सन्स होते थे उनको दे नीडेड रॉ मटेरियल्स, तो दे यूज टू ट्रैवल टू डिस्टेंट प्लेसेस एंड दे यूज टू कम बैक विथ raw materials, and they not only come back with raw materials but they also come back with so many new experiences. Okay, so these craft persons, what they used to make, क्या बनाते थे craft persons? तो craft persons जो थे different types of things they used to make. One of such things were terracotta toys. Terracotta toys मिले हैं, the archaeologist ने जब excavation किया, they found these terracotta toys, and it is very much probable that children, they must have played with these terracotta toys. You will see that in your book pictures are also given of these toys. तो बच्चे इनसे खेलते होंगे, है ना। तो other than these terracotta toys, what were the things the craft persons used to make? So many things they used to make, and they were really very unique thing. Like we see that they used to make tools, है ना, different type of tools, because tools were very much important for people in order to earn their livelihood, है ना. So people used to the craft persons used to make tools. Then weapons were also made, ornaments, vessels, all these things were made. So I'm writing down what were the things which were made by the craft persons. Now we are only discussing the craft and the craft persons. जो craft बनाते थे craft persons, हम लोग उसी को डिस्कस कर रहे हैं, है ना. तो craft persons and craft. What are the things they used to make? Tools, weapons,
ornaments. Then they also made vessels, pots. तरह तरह की जो बर्तन होते हैं, है ना. Then they also made weights, वजन, weights भी बनाते थे जिनसे वजन लिया जाता था. बिकॉज ट्रेडिंग हो रही है तो ट्रेड के लिए वेट तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना. तो वो वेट्स भी बनाते थे, ब्लेड्स भी बनाते थे, है ना. अदर देन दिस दे ऑल्सो मेड सील्स, जिनके बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था जब हमने स्क्रिप्ट्स को के बारे में डिस्कस कर रहे थे. सील्स बनाने का काम कौन करते थे? ये क्राफ्ट पर्सन्स करते थे, है ना. And other than this, the Hadappans were also knowing the art of this weaving of the cloth, है ना. So cotton was also weaved. Weaving of cotton, that was also one of the most important craft of that time. And other than this, the craft persons in Harappa, they also used to make beads भी वो बनाते थे और इन beads की फिर वो ornaments बनाते थे. तो that is also one of the important this craft, है ना. तो ये सारी चीज़ें बनती थी. टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, वेसल्स, पॉट्स, वेट्स, ब्लेड्स, सील्स, बीड्स, देन वीविंग ऑफ क्लोथ. सो नाउ वी विल सी कि व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल दे used for this purpose for making so many items. Like we see that these craft persons, they used stone in order to make tools, weapons, pots. They used stone. सेल भी वो यूज़ करते थे. इसके अलावा मेटल्स का भी यूज़ होना स्टार्ट हो गया था. मेटल्स में कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर यूज़ होता था. तो यहाँ पर कॉपर और ब्रॉन्ज जो मेटल हम कह रहे हैं, तो ये दो जो मेटल है, दीज वर यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स एंड ऑर्नामेंट्स, है ना. और गोल्ड और अगर सिल्वर हम देखें तो दैट दे वर यूज्ड ओनली फॉर ऑर्नामेंट्स. ओके. सो ये हमने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें बनती थी. अब हम ये देख रहे हैं कि किन से बनता था, व्हाट मटीरियल वाज यूज्ड, है ना. Material used by the craft persons. क्या मटेरियल यूज होता था? स्टोन, देन शेल, देन मेटल. अब अगर हम मेटल की बात कर रहे हैं तो मेटल में कौन सा मेटल यूज होता था? कॉपर, bronze, copper, bronze, gold, silver. These were the metals. है ना. ये सारे मेटल यूज़ होते थे. और इसके अलावे हम और भी चीज़ें देखते हैं कि किन चीज़ों से वो डिफरेंट आइटम्स बनाते थे. They used one more material which is called fanes. Okay, this is quite a different type of material. Faince. What is this fanes? Fanes, first of all, you must know that these all stone, cell, metal, these all are natural objects, है ना. These are naturally found objects. But when we are talking about fanes, actually it is not something which is natural. It is artificially produced material. जिसमें होता ये था कि एक गम, जिसको हम ग्लू कहते हैं, ग्लू टाइप ऑफ चीज़ जो है
उसको सैंड में, ग्लू और सैंड को मिला दिया जाता था, ठीक है। और इस ग्लू और सैंड को मिला करके एक शेप, एक पर्टिकुलर शेप दिया जाता था, मोल्ड में डाला जा सकता था उसको, या फिर अपने हाथों से भी शेप दिया जाता था। तो जब ग्लू में सैंड को मिलाएंगे तो वो एक प्रॉपर शेप लेने की कंडीशन में आ जाएगा, है ना। तो उसको एक शेप दे करके फिर उसको ग्लेज किया जाता था। इस तरह से जो ऑब्जेक्ट बनते थे उसको ग्लेज, उसको चमक, इस पर उसको स्क्रब करके उस पर चमक लाई जाती थी, है ना। और उससे वो बहुत ही, उसका शाइनी और ग्लासी सरफेस हो जाता था, वो देखने में बहुत खूबसूरत लगता था। और जो ग्लेज के लिए जो कलर्स यूज़ किए जाते थे, दे वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन। तो ये फेंस से बहुत सारी चीज़ें भी बनाई जाती थी। इससे जैसे बीड्स बनते थे, अभी हमने कहा ना ऑर्नामेंट्स बनते थे, तो ऑर्नामेंट्स किसके बन रहे हैं? ऑर्नामेंट्स गोल्ड के भी बन रहे हैं, स्टोन के भी बन रहे हैं, ऑर्नामेंट्स फेंस के भी बन रहे हैं। बैंगल्स हैं, ईयर रिंग्स हैं, छोटे छोटे वेसल्स हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो फेंस से भी बनती थी, है ना। तो दीज वर द मटीरियल्स विच वर यूज्ड for making different type of craft items. And now we will see some of the craft items, how they were made, कैसे उनको बनाया जाता था। जैसे हम देखेंगे कि जो बीड्स थे वो कैसे बनते थे, ठीक है, हाउ दे वर मेड। सो मोस्टली जो बीड्स बनते थे वो एक रेड स्टोन से बनते थे, एंड पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेड स्टोन जिसका नाम था कार्नेलिना। कार्नेलिना जो रेड स्टोन हुआ करता था, कार्नेलिना, विच इज द नेम ऑफ अ रेड स्टोन, इट वॉज यूज टू मेक बीड्स, ठीक है। इसको स्टोन को कट किया जाता था, फिर उसको शेप दिया जाता था, पॉलिश किया जाता था, और फिर उसके अंदर क्या होगा, बीड्स कैसे बनेंगे, इसके अंदर होल होगा, है ना, दैट इज बीड। हमको बाहर से सिर्फ उसके कवर पे 2 छेद दिखाई देंगे दोनों तरफ, तो ये वाला बीच में नहीं दिखेगा हमें, है ना। तो ये इस तरह से ये सारा उसको कट करना, शेप देना, पॉलिश करना, होल करना, और इस तरह से जो बीड्स बनते थे कैरोलिना का, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखिए वेट, जो कि वेट किसी भी चीज़ के वजन को मापने के लिए, इन ऑर्डर टू मेजर द वेट ऑफ एनी थिंग देयर वाज नीड ऑफ वेट्स। तो स्टोन के वेट्स बनते थे, वेट्स भी जो थे वो स्टोन के बनते थे, दे वर मेड ऑफ स्टोन्स। ये इसका है ना, एंड ये स्टोन्स के बने होते थे वेट्स। और बहुत ही केयरफुली, अगर आप देखेंगे इन योर बुक पिक्चर इज ऑल्सो गिवन, कितने केयरफुली, प्रिसाइजली मतलब बिल्कुल इधर से उधर कुछ भी टेढ़ा नहीं, एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधा, बिल्कुल मेजरमेंट सही करके वेट्स जो हैं वो बनाए जाते थे, जो क्यूब के जैसे शेप होते थे। और ये भी जो इनको जिस स्टोन से बनाया जाता था वो भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टोन होता था जिसको कहते थे हम चर्ट, CHERT, इट इज कॉल्ड चर्ट। इस चर्ट जो स्टोन है इससे वेट्स बनाए जाते थे, ओके। और इनसे चीज़ों को वेट चीज़ों का मेज़र किया जाता था, है ना। और इसके अलावे अगर हम देखें तो हड़प्पन्स जो थे वो सील्स भी बनाते थे, जैसे कि हमने पहले ही देखा था, स्टोन से सील्स बनाते थे। और ये जो सील्स होते हैं ये कैसे होते थे, दे वर रेक्टेंगुलर इन साइज, सील्स वर रेक्टेंगुलर इन साइज, ओके। दे वर ऑल्सो मेड अप ऑफ स्टोन्स, ठीक है। और इनका शेप रेक्टेंगुलर होता था, और उसके ऊपर या तो एनिमल कोई कार्व्ड होता था या फिर कुछ लिखा होता था जो कि स्क्रिप्ट्स लिखते थे, ओके। एंड देन पॉट्स भी ये बनाते थे जिसमें कि बहुत सी खूबसूरत ब्यूटीफुल डिज़ाइंस के साथ पॉट्स बने होते थे। ऐसे नहीं कि सिर्फ यूज़ करने के लिए, काम के लिए पॉट्स बना दिए गए, उसको ब्यूटीफुली डिज़ाइंड
पॉट्स हुआ करते थे. ओके. एंड ब्लेड्स भी बनते थे, स्टोन के ही ब्लेड्स बनते थे. और अगर हम देखें तो क्लोथ वीविंग पे अगर हम आए तो उसके बारे में हमें थोड़ा नॉलेज, थोड़ी जानकारी, थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें है ज़्यादा. कॉटन जो थी वो प्रोबेबली इट वाज ग्रोन एट मेडगढ़ अराउंड 7,000 ईयर्स अगो. आज से 7,000 ईयर्स अगो, यानी कि अगर हम 7,000 ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है. So we are talking about cotton. It was produced in मेडगढ़, जो कि एक इसका इम्पोर्टेंट सिटी था. ठीक है. और कब ये ग्रो किया गया था? फ्रॉम अबाउट 7,000 ईयर्स अगो. और अगर हम ये देखें कि 7,000 ईयर्स अगो का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, कितने कौन से बीसी में ये आएगा, इसका तो ये मतलब हो गया कि वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 7,000 फ्रॉम 2,000, है ना, क्योंकि प्रेजेंट में हम 2000 एडी में है. अब इसमें से हमको आज से 7,000 साल पहले की बात हो रही है, तो हमें 7,000 माइनस करना होगा. तो वी विल गेट -5,000. इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 5,000 BC. ठीक है, ये हो गया 5,000 BC. तो उस समय यहाँ पर कॉटन ग्रो किया जाता था. एंड हाउ वी कैन से दिस, बिकॉज actual pieces of clothes were found by the archaeologists. These pieces of clothes were attached to the lid of a silver vase and some copper objects also at Mohenjo-daro. Mohenjo-daro में कुछ जो सिल्वर वास है, कॉपर वास है, उनके ऊपर जैसे कपड़े से एक लिड बनाया हुआ है ना. ऐसे कोई भी ये समझ लीजिए बर्तन है, वास है. ठीक है. अब इसके ऊपर क्या किया गया कि ये जो ढक्कन है इसमें कोई ढक्कन नहीं है, बल्कि उसको कपड़े से ही उसको वो कर दिए, उसकी लिड बना दिए. तो वही कपड़े के जो पीसेज हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पीपल वेर नोइंग द आर्ट ऑफ ग्रोइंग कॉटन एंड आर्ट ऑफ वीविंग द क्लोथ्स ऑल्सो. बिकॉज नॉट ओनली दिस, द आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पेंडल वर्ल्स. स्पेंडल वर्ल्स क्या होता है, जिसपे हम कपड़ों की वीविंग करते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्पेंडल वर्ल्स. SPINDLE. These whorls are used for the weaving of the क्लोथ. जो कॉटन है, पहले तो उससे फाइबर बनेगा, फिर इस फाइबर को वीव किया जाता है. और इसके लिए यही वर्ल्स की ज़रूरत होती है, ऐसे स्पिंडल वर्ल्स की. तो ये इसके जिसको हम कहेंगे कि एविडेंस मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को. और ये जो स्पिंडल वर्ल्स हैं ये कैसे बने हैं? दीज आर मेड ऑफ टेराकोटा एंड फेंस. ओके, टेराकोटा और फेंस से बने हुए हैं और इनसे वही थ्रेड को स्पिन किया जाता था. और इसके अलावा हमें ये भी पता है कि जैसे कि जो वहाँ पर वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन था, जो क्राफ्ट पर्सन्स की हम बात कर रहे हैं, उसमें एक हमारे लिए टर्म आएगा, वो है स्पेशलिस्ट. जो भी वहाँ पे प्रोड्यूस होता था, दे वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ द स्पेशलिस्ट. व्हाट डज इट मीन? जब हम स्पेशलिस्ट की बात करते हैं तो इससे हम क्या मीन करते हैं? Specialist means a person who is trained to do only one kind of work. ठीक है. There are two types of people. एक को हम स्पेशलिस्ट कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं जनरलिस्ट. ठीक है. अब स्पेशलिस्ट क्या हुए? स्पेशलिस्ट आर दोज विच who can do only one kind of work, who are trained, they are given training for doing that work only.
only one kind of work. So they are specialist, है ना, वो बस एक ही काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से वो काम करना जानते हैं, बस वो वही काम करेंगे, उनको उसी की ट्रेनिंग दी गई है। दूसरी तरफ जर्नलिस्ट होते हैं, इसका मतलब ये होता है जो कि हर काम कर सकता है, वो सिर्फ एक काम नहीं करेगा, ही इज़ नॉट अ स्पेशलिस्ट बट ही और सी एज अ जर्नलिस्ट मीन्स कि वो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर हम क्या बात देख रहे हैं कि जो डिफरेंट चीज़ें बनाने वाले जो लोग थे, जो क्राफ्ट पर्सन थे, एक्चुअली ऐसा लगता है कि वो स्पेशलिस्ट थे, बिकॉज जो भी हमें एविडेंसेस मिले हैं, जो सामान, जो ऑब्जेक्ट्स के रिमेन्स मिले हैं, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। जिस तरीके से वहाँ पे काम होता था उससे ऐसा ही लगता है कि उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। जैसे हर काम की ट्रेनिंग, स्टोन को कैसे कटिंग करना है, पॉलिशिंग, बीड्स की कैसे पॉलिशिंग करनी है, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग होती थी। और सारे काम जो है वो एक पर्टिकुलर इंसान ही करता था। ये नहीं कि एक ही इंसान स्टोन भी कट कर रहा है, वही बीड्स की पॉलिशिंग भी कर रहा है, वही सील्स को भी कार्व कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता था। दैट विल बी जनरलिस्ट। ये नहीं थे वहाँ पर स्पेशलिस्ट थे जो कि एक ही काम करते थे, इसलिए काम बहुत अच्छा होता था। जिस तरह से बहुत ही माइन्यूटली वर्क किया गया है, जो आर्ट पीसेस हमें मिले हैं, जो एविडेंसेस मिले, उसके बेसिस पे हम यही कर सकते हैं, है ना। तो ये किसी एक्सपर्ट का काम है, एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट बोथ आर सिमिलर, है ना। जिसको हम कहते हैं कि बहुत एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट मतलब उसको स्पेशल जानकारी है, ही इज़ हैविंग स्पेशल नॉलेज अबाउट दैट। ओके, सो इसमें हम देखेंगे हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता है ना। और इस बारे में भी बहुत कम जानकारी है कि कौन थे स्पेशलिस्ट, कौन थे, मैन होते थे स्पेशलिस्ट या वुमेन होती थी या दोनों होते थे, सिर्फ मैन या सिर्फ वुमेन या दोनों। इस बारे में we don't have any evidence, but it is very much probable that some women and men may have a specialist, कुछ men कुछ women specialist हो सकते होंगे। ओके, तो we have done यहाँ तक। क्राफ्ट पर्सन्स के बारे में हमने पढ़ा, क्राफ्ट पर्सन्स कौन कौन थे, वो क्या क्या चीज़ें बनाते थे, किन चीज़ों से वो किसी भी सामान को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है ना। अगर तो किन चीज़ों से वो सामान बनाते थे, अगर टूल्स बना रहे हैं तो किससे बना रहे हैं, स्टोन से, अगर सील बना रहे हैं तो किससे बना रहे हैं, स्टोन से, ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं तो किससे बना रहे हैं, स्टोन एंड मेटल से। इस तरह से किन किन चीज़ों से बनाते थे वो किन सामानों को, और कुछ सामानों के बारे में हमने ये भी देखा कैसे बनाते थे। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। ओके, in search of raw materials. तो as I told you earlier, what is raw material? किसी भी सामान को बनाने के लिए जो हमें, जिन सामानों के हेल्प से हम एक कंप्लीट लास्ट जो सामान बनाते हैं, जिसको हम फिनिश्ड प्रोडक्ट कहते हैं, उसी को हम रॉ मटेरियल कहते हैं। जैसे हमने स्ट्रॉ का आपको एग्जांपल दिया था। तो रॉ मटेरियल्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो नेचुरल, जो कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं, जो कि नेचुरली हमें मिल जाते हैं, है ना। जैसे वुड है, मेटल्स के ओर होते हैं, स्टोन है, दीज आर द naturally found substances. But there are other substances also, like which are produced by the farmers or the herders, है ना। तो कुछ जो है वो नेचुरली हमें नेचर में मिलता है, कुछ प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं, और तब वो हम उसको यूज़ कर पाते हैं। जैसे कॉटन, अभी हमने जस्ट नाउ वी हैव सीन द एग्जांपल ऑफ कॉटन। कॉटन इज प्रोड्यूस्ड बाय द farmer, but this cotton cannot be used by us. This cotton needs to be processed, है ना। After the production of this cotton, we need to process, इसकी प्रोसेसिंग की जाती है,
प्रोसेसिंग जब होती है तब ये कॉटन जो है ये हमारे यूज़ में यूजेबल फॉर्म में आता है, और तब हम इसको क्या कहते हैं, तब ये हमारे लिए कपड़ा बन जाता है। देन वी कैन यूज़ इट, वी कैन नॉट यूज़ इट। ये प्रोसेसिंग जब उसकी हुई, उसको उसकी स्पिनिंग हुई, उसकी वीविंग हुई, तब जा कर के वो क्लोथ तैयार हुआ, है ना। तो इस तरह से जो एक तो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस हो गए जो कि नेचुरली मिल जाते हैं हमें, जैसे स्टोन है, आयरन ओर से, और दूसरा जो कि फार्मर्स या हर्डर्स जिसको प्रोड्यूस करते हैं, और वो उसी फॉर्म में हम उनको यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि उनकी प्रोसेसिंग होती है। आफ्टर प्रोसेसिंग ओनली वी कैन use these raw materials. So this is all for today. Okay, now we will continue with this discussion in the next class.